third video. Just we'll revise once again. Magnetic dipole, it is a pair of two unlike magnetic poles of equal pole strength. Okay, that is called as what? Magnetic dipole. Pair of two unlike magnetic poles of equal pole strength is called as what? Magnetic dipole. What is magnetic dipole moment? It is denoted by capital M. Capital M is equal to magnetic dipole moment. So in case of magnetic dipole moment, we know that it is the product of pole strength of either pole and the magnetic length of the magnet is called as the magnetic dipole moment, or simply it is called as the dipole moment. Okay, it is denoted by capital M. कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l. इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने क्या देखा? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a. 2a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a है. यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का डिस्टेंस कितना है? 2l है. तो कैपिटल M क्या हो गया? स्मॉल m इंटू 2l. तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलॉन्ग द एक्सिस. कहाँ पर रहेगा? एक्सिस ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल इट्स एक्शन डायरेक्शन विल बी देयर. सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड SI यूनिट इसका क्या है? SI यूनिट इज गिवन बाय व्हाट? एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द unit, SI unit, and dimension formula is what? AL square. It is given by what? AL square. तो ये हुआ अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M. सो नाउ वन थिंग वी आर सीइंग हियर कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी डेफिनेशंस हमने इनिशियली पढ़े थे सेम टाइप का इधर मैग्नेटिज्म में है. सो मैग्नेटिज्म में कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू 2L इज डायपोल मोमेंट इज दैट. नेक्स्ट कम्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक this topic. Now magnetic field lines क्या है? You see, this was first given by Michael Faraday. ये जो फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था ग्राफिकली. एक्चुअली व्हाट ही हैज़ गिवन, these lines are not present, these are lines are imaginary lines. They actually in reality they are not present there, but for visualizing the magnetic field graphically he has introduced the concept of field lines. So इन्होंने सब क्या बताया था? इमेजिनरी पाथ जो है which is free unit north pole will move in a magnetic field is known as magnetic lines of force. Magnetic lines are closed curves. Outside the magnet the direction is from north to south pole, बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज़ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. मतलब क्या है इसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आउटसाइड कैसे एक्ट करेंगे? ओके, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट हाउ इट विल परफॉर्म? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ओके, हेंस दे आर व्हाट? नाइदर ओरिजिन नॉर एंड. सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज अभी हम देख रहे हैं. The tangent at any point on the field lines gives the direction of magnetic field at that point. इसका मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट पे जो tangent बन रहा है at any point on the field lines will give the direction of magnetic field at that particular point. It will give what? Direction of the magnetic field at that particular point. Another important thing is that two lines of force never intersect each other. Two lines of force कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. Okay? If the two lines of force intersect, at the intersecting point the field should have two directions. Field कितना रहना चाहिए? दो directions रहने चाहिए, मगर वो possible नहीं है. Okay, so therefore it is having what? The point, the field lines will never intersect each other. Why they will not intersect each other? Because if the two lines of force intersect, so at the intersecting point the field should have two directions. जो दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते किसी भी पॉइंट को, एक ही सिंगल डायरेक्शन रहेगा. क्लियर? सेकेंड थिंग, द लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड टू कॉन्टैक्ट
लॉन्गिट्यूडिनली, और लेंथ वाइज जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कैसे मूव होगा, लॉन्गिट्यूडिनली होगा, लेंथ वाइज. Due to this property, the two unlike poles attract each other. Because of this property, unlike poles will attract each other in case of a longitudinal distance. Clear again? Fifth property, magnetic field lines can pass through conductor and insulators. Magnetic field lines can pass through what? Conductors and insulators. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द सुपर कंडक्टर्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सुपर कंडक्टर से पास नहीं हो सकता. वो कहाँ से पास होगा? सिर्फ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर से पास होगा. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं पर यूनिट एरिया. ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होंगे. कम है तो क्या होगा? कम पास होंगे. तो ये हुआ अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़. तो हमने क्या किया आज? बेसिक प्रॉपर्टीज़, व्हाट इज़ मैग्नेट, यहाँ से शुरू किया, और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट और द बार मैग्नेट, ये दो टॉपिक हमने देखे हैं. ओके, सो आज का नया चैप्टर है, सब लोग ये चैप्टर इसमें से लिखो. और एक मैंने पीडीएफ अपलोड किया हुआ है. दैट पीडीएफ इज़ फॉर व्हाट? दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम डीडीपीओ. डीडीपीओ ने भी एक पीडीएफ बनाया है, तो वो पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से हैं, तो वो पीडीएफ तुम रखना है, तुम्हारे पास क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में है. और दीज आर द नोट्स. ओके, सो नाउ टुडे वी हैव स्टार्टेड विद द मैग्नेटिज्म, मैग्नेट, देन अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हमने देखा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, फिर नेचुरल मैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, फिर हमने 5.2 स्टार्ट किया बार मैग्नेट किसे कहते हैं. ओके, बार मैग्नेट से हमें क्या मालूम पड़ा कि मैग्नेट जो है उसके जो लाइंस ऑफ फील्ड्स हैं वो कहाँ से कहाँ पास होंगे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अब मुझे बताओ, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा एनालॉगी करते हैं, कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ. सो एस साउथ पोल क्या रिप्रेजेंट करेगा? साउथ पोल क्या है? जनरेट हो रहा है यहाँ से, आउटगोइंग है, तो साउथ पोल किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को. और नॉर्थ पोल किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव चार्ज. बिकॉज नेगेटिव चार्ज क्या है? इनवर्ड चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्या है? आउटवर्ड चार्ज है. तो साउथ पोल विल बी एक्टिंग एज ए आउटवर्ड चार्ज and north pole will be acting as an inward charge. So this is the analogy between this magnet and the charges. So further we have seen that नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज रहेंगी. ये कैसे मालूम पड़ा साइंटिस्ट को? इन्होंने क्या किया, मैग्नेट को आयरन फाइलिंग्स में ड्रॉप कर दिया. तो इन्होंने क्या देखा कि आयरन फाइलिंग्स में जैसे ही ड्रॉप किया तो ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स कहाँ पर दिखे इनको? एंड्स में, दो एंड के ऊपर इनको ज़्यादा आयरन फाइलिंग दिखे, और सेंटर में कम थे. सो इससे उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि पोल्स हैज़ द मैग्नेटिक मैक्सिमम magnetism, so they have named that as a poles. Poles are similar to positive and negative charge of an electric dipole. Similarly, we have seen the area, minimum attractive power is for the neutral region. Then we have seen magnetic axis between the two poles के बीच का जो distance लाइन है उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे. और वर्टिकल लाइन जो रहेगा सेंटर से उसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक लेंथ इज गिवन बाय 2L, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ये हमने देखा, M इज इक्वल टू 2L. और मैग्नेटिक लेंथ फाइंड आउट करना है तो हम 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ से फाइंड आउट कर सकते हैं. पूरा लेंथ जो दिया रहेगा क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम दे देंगे ज्योमेट्रिक लेंथ, और मैग्नेटिक लेंथ नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे 5/6 से हम कर लेंगे. तो आज हमने जो देखा है पूरे के पूरे बेसिक थिंग्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. कल हम दूसरा टॉपिक देखेंगे इसके लिए. ओके, तो आज के इसमें आज ये कंप्लीट कर लेना है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैग्नेटिक डायपोल क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या है. तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, ये एनालॉगस किसको है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. ओके.